Hello students, good morning to all of you. So our today's topic in physics is magnification. So students, what is magnification? Magnification का मतलब क्या होता है? Magnification is nothing but this is to enlarge something only in appearance, not in actual. Let me repeat it once again. To enlarge. Enlarge मतलब बड़ा करना. तो let me write here. To enlarge something. To enlarge something only in appearance and not in actual is called magnification. क्या मतलब है इस लाइन का? फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट. पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस वायर से बच जाता हूँ. टू एनलार्ज समथिंग ओनली इन अपीयरेंस एंड नॉट इन एक्चुअल इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मीन्स कि आपको अपीयरेंस में किसी चीज़ को बड़ा करना है. ओके, सो इफ़ आई हैव द लेंस एंड आई सपोज मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ एंड आई एम वॉचिंग समथिंग एंड सडनली आई रियलाइज कि ये तो देखो मुझे बड़ा नज़र आने लगा. इन द लेंस आई कैन सी समथिंग बिग, है ना. तो इट डजेंट मीन कि मतलब वो चीज़ बिग हो गई है. Okay, if I put lens, double convex lens in front of my eyes closed, so you can see कि मेरी eyes जो है it is enlarged, ये बड़ी नज़र आएगी. But it doesn't mean कि ये actual में बड़ी हो गई है, ये actual में हो गई है, ऐसा नहीं है. So not in actual, appearance में बड़ी हुई है. That is called magnification. Clear हो गया? Okay, so in physics we have different type of magnifications. We have linear magnification, we have aerial magnification, different transverse magnification, it's kind of longitudinal magnification. We have different magnifications, but mostly we study about only one, that is called linear magnification, or in general we call it magnification, है ना, जिसको linear भी बोलते हैं आप, in general magnification. So अगर बहुत सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसको आपको कई ऑप्शंस you will have to go through with different kind of magnifications, but here I am just only discussing linear magnification. So the magnification actual is in, you can say, linear magnification. Linear magnification, if anyone asks what is magnification, the formula is m is equal to size of image to the size of object. Size of image to the size of object. This is the formula of magnification. Size of image to the size of object. Sometimes people also write कि यार ये height of image है या size of image है ना. They write कि ये size of image है कि height of image है. They sometimes write height of image, but actually the concept is it is size of image to the size of object. Okay, but okay, since people will always say it is height of image, so sometimes in books you can see it is like height of image, so it is hi upon ho. Okay, and the formula is minus v upon u, and yeah, this is for both concave and convex. Okay, so I can write for all mirrors. ये जो है this formula is for all mirrors. सभी प्रकार के मिरर्स के लिए ये होता है. ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन कि ये सभी मिरर्स के लिए है. सेकेंड रिक्वायर्ड कंडीशन जो इसकी है, सेकेंड रिक्वायर्ड कंडीशन इज ऑलवेज यूज साइन एंड कन्वेंशन. हमारे गली के कुत्तों को पता लग गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना. उनको अपना काम करने तो हम अपना काम करते हैं. ऑलवेज यूज साइन एंड कन्वेंशन बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ऑलवेज यूज साइन एंड कन्वेंशन बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ऑलराइट. सो अभी आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्ट बता दिया, मैं इसका आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ. गाइस, दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर है. सेकंड, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नोबडी विल आस्क हाउ द फॉर्मूला गॉट डेराइव्ड. नोबडी विल आस्क फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, नहीं मालूम, कोई नहीं पूछेगा आपसे. बट
इसका यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला, हाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, क्या होता है implementation. Okay, so they will only ask about this. So this formula where m stands for magnification, height of image upon height of object या body है ना, जिससे लाइट निकल रही है, इमेज जो उसकी इमेज बन रही है, माइनस पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. v जो है ये पोजीशन ऑफ इमेज है, इमेज की पोजीशन जो कि मिरर से कितनी दूर इमेज बन रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, एंड u इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस पोजीशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, है ना, मिरर के सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल मिरर्स. ऑलवेज यूज साइन एंड कन्वेंशन बिफोर यूजिंग दिस. ये दो बहुत ज़रूरी बातें हैं. सो टेक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस. मैं गेट खोल देता हूँ पहले, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, हमारे टाइगर, बस ये हमारे टाइगर भाई साहब जो हैं ये आ गए इधर लेक्चर के बीच में. बैठो, सिट डाउन. ओके, सो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट. अभी आपको मैं इसका डिटेल बताता हूँ. चलो लेट्स पहले इसको मैं एक तरफ से साफ कर देता हूँ. चलो इसको पहले डिराइव कर लेते हैं. व्हाट इज द डेरिवेशन, डिराइव कैसे करते हैं इसको. ओके, सो इसका डेरिवेशन जो है, हाउ वी गॉट द फॉर्मूला. सो वी हैव दिस कॉन्केव मिरर, है ना, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पे जो है द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नथिंग बट पोल. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल, ठीक है. एंड वी पुट सम ऑब्जेक्ट हियर, कुछ भी ले लो यार. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है. सो दिस इज ए एंड बी, एंड दिस डिस्टेंस इज एच ओ. एच ओ स्टैंड्स मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. और बड़ा लिखो, ये समझ में आ रहा है आपको. ये दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अरे यार, मैं 6 फीट का हूँ तो मतलब क्या, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये ए बी जो है ये है ऑब्जेक्ट, और एच ओ जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब मैं फ़ोन को थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली पूरा साइलेंट कर देता हूँ. ओके, एंड दिस इज बिटवीन, यू कैन से, सी एंड इन्फानाइट. सो फर्स्ट टेल मी वेयर द इमेज विल बी फाउंड. सबसे पहले ये बताइए इमेज कहाँ बनेगी. एक बात दिमाग में रखना स्टूडेंट्स, always use sign and convention. What are sign and convention? Let me explain you once again. The first sign and convention is take all the distances positive which are in the direction of ray. रे चलने के डायरेक्शन में if you are measuring any distance that will be positive, और रे चलने के डायरेक्शन के अगेंस्ट जो भी डिस्टेंस है that will be negative. So take all the distances positive which are in the direction of ray, and take all the distances negative which are against the direction of ray. I hope I have cleared this point. Second sign and convention is all the distances will be measured from the pole. Second sign and convention will be all the distances will be measured from the pole. जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये मैं बता चुका हूँ, है ना. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर है, यहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर होंगी. सो व्हाट इज यू. यू इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन देखनी है. वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू सी इट्स पोजीशन. इट्स पोजीशन विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर. सो दिस इज मिरर एंड दिस इज इट्स सेंटर. सो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मिरर विच इज ऑल्सो नोन एज पोल. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द पोल. तो देखो पोल ये है, पोल से डिस्टेंस मेजर होगी ये ऐसे. सो डिस्टेंस इधर मेजर होगी, दैट्स व्हाई यू इज नेगेटिव. यू नो व्हाई नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस तब यू मेजर कर रहे हो, और लाइट जो है, लाइट हमेशा आती है ऑब्जेक्ट से. लाइट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो लाइट प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एंड दिस इज हाउ यू आर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू इज नेगेटिव. ये बता दिया मैंने आपको पहले. ओके, सो लेट्स सी द इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट जो रे पैरेलल है वो ऐसे जाएगी सीधी. यार सीधी बोर्ड पे तो सीधी बन जाओ कम से कम. हाँ, एंड इट पासेस फ्रॉम द, यू कैन से, फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. अच्छा, एक और कोई रे है जो यहाँ से.
सो स्टूडेंट्स, तो ये जो फर्स्ट रे है ये प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है, और एक सेकंड रे जो है ये दिस इज स्ट्राइकिंग द पोल, ये पोल पे जा रही है। जितने एंगल से निकलेगी उतने ही एंगल से ये पोल से भी, यानी कि द एंगल विल बी द सेम, है ना, और जो एंगल सेम होगा ये उसी एंगल पे निकल जाएंगे यहाँ पे। सो दिस एंगल इज द सेम। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दिस पॉइंट विल बी द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर जो है वो इमेज बनेगी। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, यूँ करके एक सीधी रे यहाँ से भी निकल सकती है, तो फोकस पे इमेज अपने आप बन जाती, मतलब इमेज जो है वो C और F के बीच में बनती है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। चलिए, दो अलग अलग हम लोग ट्राइंगल्स की बात करते हैं इसके अंदर। तो एक जो ट्राइंगल है, अच्छा, दिस विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, लेट मी यूज द रेड पेन, यस। सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज HI, ओके। लेट्स टॉक अबाउट दिस टू ट्राइंगल्स। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ओके। अच्छा, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल कैसे हैं भाई? व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स आर दे? कैन यू थिंक कि ये एंगल और ये एंगल सेम है? यस, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज बोथ आर द सेम एंड दीज टू आर द 90 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम है, दीज टू आर द 90 डिग्री। देन अकॉर्डिंग टू law we know that sum of all the angles of a triangle is 180 degree. So if those two angles are same, then third is also same, no problem with that. In similar triangle we know that ratio of their height will be equal to ratio of their bases. तो height का जो ratio होगा HI upon HO, so ratio of their height will be equal to ratio of their bases. Ratio of their height है ना, height is equal to ratio of their bases, base, तो P और यहाँ जो है ये इमेज है, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड V, सो V अपॉन ओके, ऑल्सो रेशियो ऑफ देयर हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो भाई अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, तो ये आ जाएगा U। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, ये हाइट अपॉन ये हाइट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये पूरा डिस्टेंस। अरे समझ रहे हो ना, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब बताओ, लेट्स टॉक अबाउट साइन एंड कन्वेंशन। दिस इज द मिरर एंड एवरीथिंग इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव एंड Y नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, बट ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट। सो इट मीन्स क्या होगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, जो, क्योंकि देखो हर डिस्टेंस मेजर कहाँ से करोगे? पोल से ही करोगे। अब ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, इमेज भी यहाँ पे है, तो हर डिस्टेंस के लिए पोल से इमेज आने के लिए भी ऐसे आना पड़ेगा, और पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए भी ऐसे आना पड़ेगा, और लाइट ऐसे आ रही है ना। तो ये हो गया। अच्छा, तो -V अपॉन -U, ओके। वन मोर थिंग, इट इज़ डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सेस, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के डाउनवर्ड है, तो उसके लिए और नेगेटिव आएगा, तो माइनस का HI और आएगा हमारे पास, है ना। सो ओवरऑल ये माइनस माइनस कैंसिल, दिस माइनस कम्स हियर, सो M इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू, देखो ये माइनस इधर आ गया, -V अपॉन U, -V अपॉन U। So this is the formula, you can directly आप याद कर सकते हो। In exam all you need to do just make the diagram and take this as a final answer. Some important results, कुछ बहुत ज़रूरी सूचनाएं, important results is, अगर m is equal to 1 है, इसका मतलब क्या है? V और U का रेशियो जो है वो 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ height of object equal to height of image, object image बराबर if m is equal to 1। अच्छा, for m greater than 1, अगर m बड़ा है 1 से, इसका मतलब क्या हुआ भाई? enlarge यानी कि बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है भाई। m ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकती है? जब v बड़ा है u से, सो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये इमेज
जो है वो बड़ी है। m लेस देन 1 मीन्स डिमिनिस्ड, m लेस देन 1 मीन्स डिमिनिस्ड, यानी कि छोटी इमेज, क्योंकि ये छोटा कब होगा जब u यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज से तो डिमिनिस्ड इमेज है। अच्छा, m पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, और m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनती है। m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज। ठीक है, m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज। m इक्वल टू 1 है, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन यू सी द बोर्ड? यस, सो m इफ लेट मी मेक यू सी दिस लाइक दिस। हाँ, अभी नज़र आ रहा है आपको? ओके, all right, so if m is positive virtual image, m is negative real image, m equal to 1, height of object is height of image बराबर है, m greater than 1 and large है, m less than 1 is diminished है। so it's all about in today's class। next class में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। okay, thank you।